Hello and welcome students. Very good morning to all of you. Today we are going to discuss the next method of your time series, that is chapter number 4, statistics. Just only to remind and revise the earlier session which was done by us. First method, that is there are three methods, that is graphical method. First method of time series, that is your graphical method. Second method, that is your least square method. 5-marker question is going to be asked of such method. We have already seen that the formula for least square method to find out linear equation. The formula was yt cap is equal to a plus bt. Find out b, find out a. B means coefficient. Okay, that means what? B is equal to n sigma ty minus sigma t sigma y upon n sigma t square minus sigma t the whole square. To find out A, the same formula regarding your regression, same type of formula relating to your regression. That means what? A is equal to y bar minus bt bar. I hope you have understood properly this formula and the question which I had given you in your homework. It has been done properly. So इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम नहीं है. द एक्सरसाइज विच हैज बीन गिवन बाय मी, आपने वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व किए होंगे. सो स्टूडेंट्स, now we are moving to moving average method. What is the meaning of moving average? Average का मतलब क्या? हमने ऑलरेडी x बार ढूंढा हुआ था. That means what? Statistics में आपको मालूम है x bar means mean. Okay, and the formula of mean is what? Sigma xi upon n. यानी क्या? Sigma xi means total of observation. N means what? Number of observation. That means what? The finding out such process is called as average. Suppose you will be provided 2 plus 3 plus 4. That means we are having three numbers here. So divide by 3, you will get your average. 2 plus 3 plus 4, that comes to what? 9. 9 divided by 3, the answer would be 3. What is this? This is your average. Now as if we have been provided just only these three numbers and it has been divided by 3, you are getting average of this data only. यानी आपको सिर्फ ये 3 डेटा है, उसी का एवरेज फाइंड आउट करना है और उसी का एवरेज आपने फाइंड आउट करके यू गॉट द आंसर, दैट इज 3. But as per the time series that you have been provided data for different intervals, for different number of years, may be possible for a number of days and for different number of months. तो मूविंग एवरेज का मतलब आपको हर एक डेटा जो भी आपको दिया गया है उसका एवरेज फाइंड आउट कीजिए. वी आर हैविंग हियर 3 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज मेथड. That is first one, that is 3 yearly moving average. Next one, that is 4 yearly moving average. Moving. Okay. And the last one, that is 5 yearly moving average. Find out 3 yearly moving average, 4 yearly moving average, 5 yearly moving average. Find out 3 monthly moving average, 4 monthly moving average, 5 monthly moving average. यानी मूविंग यानी हर साल को आपको आगे बढ़ाना है. पहले 3 साल के लिए सपोज आपने एवरेज फाइंड आउट किया, उसके बाद के 3 साल के लिए एवरेज फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद के 3 साल के एवरेज फाइंड आउट कीजिए. दैट मीन्स यू हैव टू लीव द प्रीवियस ईयर एंड हैव टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 years. Once again, to move ahead, just only leave the first initial previous year and move to the next 3 years. Okay, that is called as moving average method. First method, that is 3 yearly moving average, 4 yearly moving average and 5 yearly moving average. Right now today we are going to discuss about 3 yearly moving average and 5 yearly moving average. So students, let us understand by solving the sum. ओके, तो देखिए हमारे पास सम है फाइंड द ट्रेंड बाय 3 yearly मूविंग एवरेज. बाय 3 yearly मूविंग एवरेज you will be provided the question. Okay, that is your year will be given, sales, that means variable will be given to you, variable that is to be denoted by y. T will not be given to you, but
वो आपको अपनी हिसाब से अपने तरीके से अज्यूम करके लिखना है। कैसे? फर्स्ट ईयर्स टी वुड बी 1, सेकेंड ईयर्स टी वुड बी 2, जो हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड में देखा था उसी तरीके से। इसका कोई यूज नहीं है, बट दिस इज जस्ट ओनली फॉर आवर पर्पस। फर्स्ट ईयर्स टी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That means up to whatever number of years are being given to you, as per those, you are supposed to write T. T means time interval that is given from 1 to 10. Data that is given for Y, that is 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14 and 12. Now concentrate properly. बच्चों अच्छी तरीके से देखना. We required 3 yearly moving average. That means what? First of all, find out first 3 years total. First 3 years average. That means first 3 years total would be what? 3 plus 4 plus 8. See, यहां पे देखिए हमने क्या किया, मूविंग टोटल ऑफ 3 years. देन वी आर अबाउट टू फाइंड आउट, टोटल करने के बाद ही एवरेज फाइंड आउट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम वुड बी, आप टोटल कीजिए, टोटल के बाद एवरेज फाइंड आउट कीजिए। अब ये 3 की बात करें, फर्स्ट 3 years की बात करें, दैट मीन्स द आंसर, दैट मीन्स एवरेज इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रिटर्न हियर इन द मिडल ऑफ द योर 3 years. So 3 plus 4 plus 8, that comes to 3 plus 4 plus 8 is equal to 15. Now, as per the earlier discussion, अब मुझे मूव करना है, आगे जाना है, मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। इसके लिए यू रिक्वायर टू फाइंड आउट मूविंग टोटल। तो कौन सा मूविंग टोटल? चलिए आगे के 3 साल को लेते हैं। दैट मीन्स व्हाट? दीज 3 years आर टू बी टेकन फॉर नेक्स्ट कैलकुलेशन। दैट मीन्स हमने प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया एंड नेक्स्ट ईयर जो था उसको हमने ऐड किया। दैट मीन्स नाउ यू आर सपोज टू मेक इट आउट टोटल फॉर 4, 8 and 6. The average would be in the middle year. That means the answer should have to be written here. तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर का आपको टोटल करना हो तो पहले साल का आपने छोड़ दिया, यू आर अबाउट टू मूव अहेड, तो बाकी के 3 साल कौन से रहेंगे? तो दिस वुड बी योर 3 years. इट वुड बी 4 plus 8 plus 6. हम 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 yearly मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर ले, इसलिए हम 3 साल के डेटा को कैप्चर करेंगे। इसका मतलब हमने टोटल कौन सा किया? 4 plus 8 plus 6. देखिए यहां पे 4 plus 8 plus 6, दैट कम्स टू 18. अब बच्चों, द कैलकुलेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, द प्रोसेस दैट इज डिपेंड अपॉन यू, इट इज एज पर योर कन्वीनियंसी। कैसे टोटलिंग करते हो वो दैट इज डिपेंड अपॉन यू। अब मैं दूसरी मेथड अप्लाई कर रहा हूं, यू शुड हैव टू फॉलो द सेम मेथड विच यू हैव फॉलोड अर्लियर। जो एक मेथड आप करते हो वही मेथड आपको फॉलो करनी है, या तो दिस वे, ओके, टू मेक योर टोटल दिस मेथड शुड हैव टू बी अप्लाइड, और मे बी पॉसिबल द नेक्स्ट मेथड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए अब हमने ये जो टोटल किया, ओके, ये टोटल 18 जो टोटल किया, ये इस 3 साल के लिए टोटल किया है। अब मुझे आगे बढ़ना है। वी रिक्वायर्ड व्हाट? द टोटल ऑफ दिस 3 years, मूविंग एवरेज, मूव अहेड, ओके, लीव द पास्ट ईयर एंड एड द नेक्स्ट ईयर। अगर हम बात करें तो यही बात जो मैंने आपको बताई वही बात कि 18 के टोटल, सी 3 साल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे आप अगर लिखते जाओगे तो भी नो प्रॉब्लम एट ऑल, 8 plus 6 plus 7. बट सच मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ओके, वो आपको आगे के 5 years के लिए अगर बोला गया हो तो देन इट इज हेल्पफुल टू यू। अब देखिए 18 टोटल आया, उस टोटल में से मैं 4 यानी पहले साल का जो अमाउंट था 4 वो मैंने माइनस किया, और जो मेरे ईयर के लिए मुझे जो चाहिए उसमें आपने 7 को ऐड किया। देखिए 18, दिस टोटल वॉज फॉर 4, 8 and 6. अब हमें सपोज अगर आगे जाना हो, आगे के 3 साल के लिए, तो इट वुड बी हैविंग टोटल ऑफ 8, 6 and 7. तो क्या किया हमने? तो अल्टीमेटली टोटल जो है वो कॉन्सिक्वेंटिव ईयर्स के लिए टोटल हो रहा है। तो इसका मतलब 18 में से अगर मैं 4 माइनस करूं और 7 प्लस कर दूं, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम टोटल। करो आप 8 plus 6 plus 7, यू विल गेट द 21.
So same way, that means this is an easier method. Okay, it is depend upon you कि आपको जो अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है, वो मेथड आप सॉल्व कीजिए. देखिए मैं आगे के लिए कर रहा हूं. ये 18 में से मैंने 4 माइनस किया, 7 प्लस किया, देन द आंसर कम्स 21 फॉर दिस ग्रुप. ये 21 टोटल किसके लिए आया था? इसके लिए. अब अगर मुझे आगे बढ़ना है, दैट मीन्स व्हाट, टू फाइंड आउट मूविंग टोटल ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स, मुझे जाना पड़ेगा इस 3 साल के लिए. क्या होगा? 21 टोटल में से 8 को माइनस करो और 11 को प्लस करो. देखिए इसके बीच में हमें रिकॉर्ड करना है. दैट मीन्स व्हाट, 21 माइनस 8 प्लस 11, you will get 24. Same way, now if you want to move ahead, that means what? You required what? Just only deduct 6 plus 9. That means 24 minus 6 plus 9. You will get the answer 27. यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए मिक्स कैलकुलेशंस दिखाई है. ओके, आगे बढ़ते हैं. दैट मीन्स सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट टोटल ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स, दैट मीन्स 11 प्लस 9 प्लस 10, द मिडल वुड बी व्हाट? दिस वन. यू शुड हैव टू राइट द आंसर वेयर? इन द मिडल ऑफ योर 3 इयर्स. दैट मीन्स व्हाट, इट कम्स टू 11 प्लस 9 प्लस 10. वैसे भी देखा जाए तो एवरेज कहां पे मिलता है? 3 साल का एवरेज अगर आपने रैंक कोरिलेशन में देखा था, इन केस इफ यू विल बी हैविंग 3 इयर्स नंबर, देन द मिडल पोर्शन, मिडल नंबर वुड बी योर रैंक. तो उसी तरीके से यहां पे भी अगर 3 साल के लिए अगर दिया है तो मिडल इज योर 9. दैट्स व्हाई द आंसर शुड हैव टू बी रिकॉर्डेड हियर 11 प्लस 9 प्लस 10. दैट मीन्स द आंसर वुड बी योर 30. So by that way, same way you should have to calculate. And this way, by calculating such thing, you are not going to get any total in the first year and any total on the last year. So just make it out dash in first year and dash in the last year. Now find out average. Okay, average find out करने के लिए क्या है? Next column, that is moving average of 3 years. क्या find out करना है? Mean. Mean कैसे find out करेंगे? Total, that is sigma xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट मीन्स व्हाट, हमने इन 3 का टोटल किया था 15, 3 साल के लिए टोटल किया था. दैट मीन्स वी आर हैविंग 3 टू डिवाइड. दैट मीन्स 15 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3, 21 अपॉन 3, 24 अपॉन 3, 27 अपॉन 3, 30 अपॉन 3, 33 अपॉन 3, 36 अपॉन 3. वंस अगेन योर फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एवरेज. है ना इजी बच्चों? तो ओरिजिनली यू आर गेटिंग द आंसर, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ये तो कोइंसिडेंट है कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, हो सकता है आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट भी आए, पॉइंट में भी आए, अलग भी आए. ओके, दैट डजंट मीन कि क्या आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है. जस्ट ओनली यू शुड हैव टू फाइंड आउट एवरेज. ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी टोटल आया उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो. 3 साल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 साल का मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए वी विल डिवाइड बाय 3. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? मैं समझ सकता हूं कि क्या आपने प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझा होगा. ओके, लेट्स मूव फॉर 5 ईयरली मूविंग एवरेज. बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क में 110% ऑप्शन में आता है. जस्ट ओनली लिटिल बिट कैलकुलेशन इज देयर, बट अदरवाइज यू विल गेट 5 मार्क्स कैश फ्रॉम दिस क्वेश्चन. 5 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज. ओके, सो लेट्स मूव टू योर 5 ईयरली मूविंग एवरेज. नाउ सी स्टूडेंट्स, लास्ट हमने देखा 3 ईयरली मूविंग एवरेज. अब हम देखने जा रहे हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज. लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 3 साल के लिए आपको टोटल करना था. बोथ द मेथड्स, बोथ द कैलकुलेशंस आर सो सिंपल. 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज. देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस इन 4 ईयरली मूविंग एवरेज. हम वो बाद में डिस्कस करेंगे. इनिशियली जस्ट लेट इट गो फॉर 5 ईयर्स मूविंग एवरेज. सी, उसमें 3 साल में 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हमने 3 ऑब्जर्वेशंस को टोटल किया और 3 से डिवाइड किया. यहां पे दिया हुआ है 5 ईयरली मूविंग एवरेज. यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर 5 साल के लिए दिया हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली मुझे 5 साल का टोटल करना पड़ेगा एंड इट शुड हैव टू बी डिवाइडेड बाय 5. इज इट क्लियर? ओके, तो वही चीज जो आपको दिया गया है वही चीज आपको अप्लाई करना है. वंस अगेन यू विल बी गिवन क्वेश्चन, दैट इज योर ईयर. Profit will be given. Profit, that is your variable Y. Okay. T, it should have to be written. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. We require the next total, next column. That is for
मूविंग टोटल ऑफ 5 years. नाउ गो फॉर 5 years. देखिए 5 साल के लिए जाइए, 5 साल का टोटल कीजिए. दैट मीन्स व्हाट, यहां तक का टोटल करना है, 1 2 3 4 5. दैट मीन्स वी रिक्वायर टोटल ऑफ 5 years. और 5 years के मिडल में कौन आएगा, ये आएगा. ओके, दैट मीन्स व्हाट, द आंसर और द टोटल शुड हैव टू बी रिटर्न अगेंस्ट दिस नंबर. दैट मीन्स फर्स्ट टू कॉलम, फर्स्ट टू रो दैट इज गोइंग टू बी nil, एंड द सेम वे लास्ट टू रो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी nil. नाउ चलो हम दोनों मेथड फिर से अप्लाई करते हैं. हमने पहले जो फर्स्ट ईयर तो आपको इमीडिएटली किसी भी हाल में आपको टोटल करना ही पड़ेगा. दैट मीन्स व्हाट, 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, 5 years हो गया. 5 years का टोटल करते हैं. द आंसर वुड बी 84. What else? Move ahead. Leave your first year and go to your next year. You require total of what? Next 5 years. Move. That is called as moving total. That means what? This is to be recorded for, you should have to total. That is 14 plus 18 plus 20 plus 17 plus 24. क्या किया हमने? 15 को अलग किया and 24 को add किया. The same concept is to be applied here for making out total. See, the total of first 5 years was 84. 84 में से 84 तो definitely total है ही. तो 84 में से 15 माइनस करो और 24 जो नया ऐड हुआ उसको हम प्लस करते. दैट मीन्स व्हाट, 84 माइनस 15 प्लस 24, द आंसर कम्स टू 93. यू शुड हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, यू शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर ये टोटल गलत आया, एज इफ यू आर कैलकुलेटिंग, एज इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर, मे बी पॉसिबल बाय मिस्टेक इफ दिस टोटल विल बी रॉन्ग इन दिस मेथड पर्टिकुलरली. ओके, फॉर दिस कैलकुलेशन अगर ये टोटल रॉन्ग आया तो सारे टोटल जो है वो रॉन्ग आएंगे. इसलिए बहुत केयरफुली जस्ट मेक इट आउट टोटल ऑफ फर्स्ट टोटल इज बेस फॉर द नेक्स्ट टोटलिंग. ओके, दैट्स फॉर 84 minus 15 plus 24. Move ahead. The total of this is 93. हम आगे बढ़ रहे हैं. That means next 5 years that is to be calculated for this number of years. That means 18, 20, 17, 24, 17. You may have certain kind of calculation by 18 plus 20 plus 17 plus 24 plus 27. यहां पे लिख दो तो भी चलता है, no problem at all. Okay, that is your choice. अगर मैं थोड़ा easier करना चाहता हूं, that the total is already there, that is 93. 93 में से 93 यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी हमें यहां पे मिडल में आंसर लिखना है as if in a continuous form. That means what? 93 में से 14 माइनस करो और 27 प्लस करो. बोलो, समझ में आया? तो सेम वे 93 में से मैंने 14 को माइनस किया, 27 को प्लस किया. आगे बढ़ते सेम वे, अब मुझे चाहिए ये 5 group of this 5 years. That means what? Out of 106, the total of this that comes to 106. 106 में से 18 माइनस किया और 25 मैंने प्लस किया. अभी भी एक साल बाकी है. That means total comes to 113. We will move for this 5 years. और एक साल को हमने आगे बढ़ाया. That means what? 17 और up to 23. We are going to make total of this. That means what? It is going to be having 113 minus 20 plus 23. So you are getting the total of 5 yearly moving total. 5 साल का टोटल मिल गया और अब कुछ करना नहीं है. फाइंड आउट मूविंग एवरेज ऑफ 5 years. 5 साल का एवरेज फाइंड करना है. नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दैट मीन्स व्हाट? डिवाइड बाय 5. दैट मीन्स 84 डिवाइड बाय 5, 93 डिवाइड बाय 5, 106 डिवाइड बाय 5. एज इफ इट इज फॉर 5 years एवरेज, यू आर अबाउट टू डिवाइड बाय 5. दैट मीन्स 113 बाय 5, 116 डिवाइड बाय 5. ये कहां से आया? ये रहा टोटल. ये टोटल जो है इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर योर एवरेज. ये टोटल यूज किया, ये टोटल यूज किया, ये टोटल यूज किया. ओके, कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट? बाय डिवाइडिंग बाय 5 यू आर गेटिंग आंसर 16.8, 18.6, 21.2, 22.6 एंड 23.2. बोलिए बच्चों. Okay, now you have understood properly both the calculations, that is for 3 yearly moving average and 5 yearly moving average. मैं आशा रखता हूं कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. You are not having any kind of doubt or query. Okay, and then also in case you will be having any doubt, then please message me. Feel free to message me. Okay,
From exercise 4.3 and main exercise 4, find out the question relating to 3-yearly moving average and 5-yearly moving average. Solve it and you will definitely get interesting to solve this question. Thank you very much, my dear students, for visiting my channel and watching my video. Don't forget to like, share and subscribe. And press the bell icon for my latest videos and further notifications. Goodbye. Have a nice day. Stay safe. Stay happy.